Hello dear students of class 5th, this is Priyanka Arora welcoming you to Maths Online class. Yes students, today in this lecture I will be giving you the explanation of all the questions which I have given you in revision test 3. So let us begin with the very first question of revision test 3. Yes students, as I told you that revision test 3 was related to section C of your paper pattern, which was short solution based questions part 2, type 2. So here are the questions which I have given you there. So the first question was, form the greatest and the smallest number using the given digit only once. Some digits are given and we have to use this digits only one to frame the greatest and the smallest number. So let us frame the greatest number firstly. So see, greatest number using the above digits. So greatest, that means the greater digit will come firstly. So the greater from all this is 9. So first of all 9, then after 9 8, after 8 7, after 7 5, then after 5 4, then 3, then 1 and then 0. Put commas according to the Indian system, and then you count that all the digits we have covered or not. So 1 2 3 4 5 6 7 8 digits were given. 1 2 3 4 5 6 7 8, and we have also noted down all the 8 digits. So this is the greatest number from all the digits which are given here, and we have used all the digits only one time. Now similarly we have to frame the smallest number also using the above digits. Then to frame the smallest number, it will be the opposite of this number, but we cannot frame the number with 0 in the beginning. Okay, 0 के साथ हम किसी भी नंबर को फ्रेम नहीं कर सकते हैं. So हम सेकेंड स्मॉलेस्ट जो नंबर है उससे हम डिजिट को फ्रेम करना स्टार्ट करेंगे. So 1 से हम स्टार्ट करेंगे and then we will put this 0. So after 1 0 will come. Then you can use this number from back side like 3, then 4, 5, 7, 8, 9, and then you put simply commas. So 1 0 3 4 5 7 8 9 is the smallest number from these digits which we have used only once, and this is the greatest number which we have framed using these digits only one time. Okay, so this was question number first. Now question number 2 is, round the following number as instructed in the bracket. ब्रैकेट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको राउंड अप और राउंड डाउन करना है. सो सी, A part is 20,193 and in the bracket it is written that we have to round it off in nearest 10. हमें इसको nearest 10 में राउंड अप करना है. सो nearest 10 मतलब हमें वंस प्लेस के ऊपर बॉक्स फ्रेम करना होगा. जिसमें भी राउंड अप करना होता है उसकी प्रीवियस जो प्लेस होती है उसके ऊपर हम एक बॉक्स फ्रेम करके और देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो 5 से बिलो है या 5 से अबव है. ये नंबर जिसके ऊपर हमने बॉक्स फ्रेम करा है, आप देख सकते हैं कि ये नंबर 5 से बिलो है. अगर 5 से बिलो है दैट मीन्स इट विल बी राउंड डाउन, और अगर 5 से अबव होता है तो इट विल बी राउंड अप. सो अभी 5 से बिलो है तो ये राउंड डाउन होगा. राउंड डाउन के केस में क्या होता है, जहां आपने बॉक्स बनाया है उस नंबर को छोड़ के बाकी के जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं, वो सिमिलर रहेगी. दैट मीन्स 2019 एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 3 है इसकी प्लेस पर आ जाएगा 0. वाई 0? बिकॉज वी आर राउंडिंग इट अप इन नियरेस्ट 10, और हम नियरेस्ट 10 में राउंड अप कर रहे हैं तो आपको पता है 10 के अंदर सिंगल 0 आता है. दैट्स वाई ये जो बॉक्स है, बॉक्स में जो नंबर है 3, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 0. सिमिलरली सी, नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट, इट इज 180,950. नाउ वी हैव टू राउंड इट ऑफ इन नियरेस्ट 100. इस नंबर को हमें नियरेस्ट 100 में राउंड अप करना है. तो 100 से पहले वाली प्लेस हम देखेंगे तो 100 से पहले आता है टेंस. तो यहाँ पर जो टेंस प्लेस पे नंबर है उस पर हम एक बॉक्स बना देंगे पहले. ओके, बॉक्स बनाने के बाद में आप देखेंगे बॉक्स में जो भी वैल्यू है वो 5
या 5 से अबव है या 5 से बिलो है। तो अभी ये जो नंबर है वो 5 है, तो 5 या 5 से अबव वैल्यूज आती है तो राउंड अप होती है। सो यहाँ पे जो वैल्यू है ये राउंड अप हो जाएगी। दैट मीन्स जो इसके पहले वैल्यू है 1809, इसमें +1 हो जाएगा। तो देखिए आप 1809 में जब आप +1 करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 9 + 1 इज 10, 1 कैरी ओवर 181। सो ये हो गया 1810। तो पहले आप यहाँ पे लिख देंगे 1810। अब क्योंकि हम नियरेस्ट 100 में राउंड अप कर रहे हैं तो 100 में कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज। तो ये जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 2 जीरोज। सो दिस विल बी आवर आंसर, राउंड इट अप इन नियरेस्ट 100. Next, 609,487. This we have to round up in nearest 1000. So first of all, we will write the number 609,487. Nearest 1000. That means 1000 की previous place 100. तो हम 100 के ऊपर बॉक्स फ्रेम करेंगे। 100 के ऊपर हमने बॉक्स फ्रेम करा। अब बॉक्स वाली वैल्यू देखिए आप, 5 से बिलो है, 5 से बिलो है, दैट मीन्स राउंड डाउन। और राउंड डाउन के केस में मैंने आपको क्या बताया, बॉक्स के पहले जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता राउंड डाउन में। सो ये 609 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 609। देन 1000 आपको पता है 1000 में कितने जीरोज आते हैं, 3 जीरोज। सो 9 के बाद में आ जाएंगे हमारे पास में 3 जीरोज। दैट मीन्स बॉक्स से लेके लास्ट डिजिट तक आ जाएंगे हमारे पास में 000। सो ये हो गया हमारा नियरेस्ट 1000 के अंदर राउंड अप। Okay, so like this you were supposed to do question number 1 and question number 2. Yes students, question number 3 of your revision test 3 is find the product of 316 and 264 by lattice multiplication. So lattice multiplication को यूज में लेके आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये ध्यान रखेंगे आप स्टूडेंट्स के अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर तो आपको उसी को यूज में लेके और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। आप प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन से अगर रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे आपका आंसर नो डाउट सही आएगा, बट आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो मेथड स्पेसिफाई होता है हमें उसी मेथड को यूज में लेकर और आंसर कैलकुलेट करना होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे लैटिस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो हम लैटिस मल्टीप्लिकेशन को यूज में लेके ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो यू नो दैट फॉर लैटिस मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू मेक वन स्क्वायर बॉक्स। सो firstly here we will be making one square box and 3 digits are there in the question, right? 3 digits are there, so we will be making 3 rows and 3 column. Okay, so like this you will be dividing your square box. Okay, so first of all you will do like this, then at the top you will write here 316। टॉप में आप 316 लिखेंगे और आप वर्टिकली लिख देंगे 264। फाइन। अब आप अपने बॉक्स को डिवाइड करेंगे स्लैंटिंग लाइन के थ्रू, लाइक दिस। टॉप वाला, बॉटम पे भी आप इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पे आप स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर भी आप स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन फाइनली यहाँ पर भी आप स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे आपको स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करनी है। देन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। पहले आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है उसको आप यहाँ से इसके फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 2 6। यहाँ पे हमें डबल फिगर में नंबर लिखना है तो 6 को हम लिखेंगे 06, तो ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 6। अब फर्स्ट नंबर को हम सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × 6 18 कैसे लिखेंगे हम, 1 टॉप पर और 8 यहाँ पर। देन 3 × 4, सो 3 4 12, सो 1 and 2। ओके, नाउ अब आप सेकेंड नंबर पर आ जाइए। इसी तरीके से सेकेंड नंबर को आपको इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 × 2 इज इक्वल्स टू 2, सो वी विल राइट इन डबल फिगर 02। 1 × 6 इज इक्वल्स टू 6, अगेन इन द डबल फिगर 06। 1 × 4 इज इक्वल्स टू 4, सो डबल फिगर 04। 6 × 2 is equals to 12, so double figure 1 and 2. 6 × 6 is equals to 36, so 3 and 6. 6 × 4 is equal to 24, so 2 above the horizontal line and 4 below the horizontal line. Now
इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो ये स्लैंटिंग कॉलम्स बन रहे हैं इसकी हम टोटल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप टोटल लिखेंगे, यहाँ पे तो सिंगल नंबर है 4, तो हम 4 लिखेंगे और 4 के ऊपर एक सर्कल बना देंगे। ओके, नेक्स्ट कॉलम में आप आ जाइए। यहाँ पर नेक्स्ट में आपको दिख रहे हैं 3 नंबर्स हैं, सो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। 6 + 4 इज 10 एंड 10 + 2 इज 12। 12 डबल नंबर आया है, राइट। सो 12 में से हम 2 को तो यहीं पर प्लेस कर देंगे इस कॉलम के नीचे और उसके ऊपर हम सर्कल लगा देंगे, और ये जो 1 है ये आगे वाला जो कॉलम है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट सीक्वेंस जा रही है इसमें आप कर दोगे +1। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 मेंशन करना है और जो 1 है एडिशनल वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप इस सीक्वेंस में ऐड करिए। सो देखिए 6 + 2 8 + 2 10, 10 + 3 इज 13 + 1 14। 14 का अब देखिए 14 आया हमारे पास, 14 में से 4 को तो हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे भी जो 1 बचा है उसको हम नेक्स्ट कॉलम के अंदर ऐड कर देंगे +1। अब वो यहाँ पे काउंट होगा। ओके, सो देखिए 8 + 2 10 + 1 11 12 एंड 13। 13 आया अब हमारे पास में, राइट। 13 का 3 हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इसके सामने और +1 हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, नाउ अब आप वापस ऐड करिए इस कॉलम के अंदर। 6 + 1 7 + 1 8। सो यहाँ पर आ जाएगा कंप्लीट 8। यहाँ पे कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा नेक्स्ट में, और यहाँ क्या है 0। इस ऊपर जो स्लैंटिंग कॉलम है इसके अंदर सिर्फ 0 है, तो 0 पे आप सर्कल कर दीजिए। अब जहाँ जहाँ पे सर्कल हुए हैं वो नंबर्स हमारा आंसर है। फाइन, तो आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर 3 1 6 × 2 6 4। सो 316 × 264 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा हमारा। अब देखिए अगर बिगनिंग 0 से हो रही है, यहाँ से बिगनिंग होगी, टॉप टू बॉटम आपको लिखने हैं सारे नंबर्स। सो अगर 0 से बिगनिंग हो रही है तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, हम 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम 8 से स्टार्ट करेंगे। सो इट विल बी 8 देन 3 4 2 4, पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। So 83,424 is the answer of this lattice multiplication. Got it, students? So like this you have to solve it. Okay? Next. What is the difference between the greatest 7-digit number and the smallest 6-digit number? Greatest 7-digit number और smallest 6-digit number के बीच में क्या difference होता है? Difference means subtraction. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर कौन सा होता है। तो वही हम पहले मेंशन करेंगे। हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर इज, ग्रेटेस्ट नंबर 9 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 7-digit नंबर बोला है तो हम 7 टाइम्स 9 को रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7. So this is the greatest 7-digit number. Now we have to write the smallest 6-digit number. Smallest 6-digit number is, अब स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, वो 1 से स्टार्ट होगा और उसके आगे 0 रिपीट होंगे। सो हम पहले लिखेंगे 1, ये 1 नंबर हो गया हमारा। अब हम 5 zeros यहाँ पर एंटर करेंगे और सो ये सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, हमें 6-digit चाहिए थे तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आप कॉमा प्लेस कर दीजिए। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर। नाउ वी हैव टू फाइंड देयर डिफरेंस। सो यू विल बी राइटिंग देयर डिफरेंस, यानी इनके बीच का सब्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा आपके पास में 99,99,999 माइनस 1 लाख, इसको हम माइनस करेंगे। सो सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास में आ जाएगा 9 - 0 इज 9 9 9, देन अगेन 2 more 9 and then 9 - 1 is 8 and then 9.
98,99,999 will be the answer of this question number 4th. I hope both these questions are clear to you. Yes students, now our question number 5th is solve the given equation using BODMAS rule. ये equation है और इसको हमें BODMAS rule के according solve करना है. So see, क्या करेंगे हम? सबसे पहले आप देखेंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. सो 11 इंटू 4 44 प्लस 3 47/4. और BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट ओपन कर देंगे. सो 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6. तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - 2 + 15. ओके, ब्रैकेट के बाद हमें करना होता है ऑफ. तो अब हम पहले इस ऑफ को सॉल्व करेंगे. ऑफ के पास में ये दोनों टर्म्स हैं तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे. सो सी कैसे करेंगे आप इसको? 47/4 ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड देन 24. बाकी की जो वैल्यूज़ है वो आप एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे. ओके, अब आप कैंसिल करिए. 4 और 24 को आप कैंसिल करिए. 4 1 = 4 एंड 4 6 टाइम्स इज 24. अब आप 47 और 6 को मल्टीप्लाई करिए. क्योंकि यहाँ पे ऑफ का साइन था तो पहले हम इन दोनों टर्म्स को ही पूरा सॉल्व करेंगे. सो सी 6 7 इज 42, 6 4 = 24 प्लस 4 इज 282 डिवाइडेड बाय 6 - 2 + 15. ओके, बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आएगी, बस हमने 47 और 6 को मल्टीप्लाई करा है. अब हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन में है देखिए डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन. सो एज पर द रूल ऑफ BODMAS फर्स्टली वी डू डिवीजन हियर. सो डिवाइड करने के बाद में जब आप 282 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको वापस मिल जाएगा स्टूडेंट्स 47 - 2 + 15. अब BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग हम पहले करते हैं एडिशन, फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्शन. सो ये नंबर 47 और 15 इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों ही एडिशन का है, ये बीच में -2 सब्ट्रैक्शन का है, तो इसको हम बाद में करेंगे. सो पहले आप 47 और 15 को साथ में रखेंगे स्टूडेंट्स, -2 सेपरेटली रखेंगे. इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 62 और इस 62 में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा 60. Okay, so like this you have to do the BODMAS equation. Now, next, find the HCF of 36 and 54 using the prime factorization method. मेथड का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि जो भी मेथड मेंशन होगा आपको उसी के थ्रू फाइंड आउट करना है. आपको दूसरा मेथड आता है, आप चेक करना चाहते हो आप अपना आंसर, तो आप रफ के अंदर चेक कर सकते हो उस मेथड से. लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफाई है कि आपको यही मेथड यूज़ में लेना है तो आप उसी मेथड को यूज़ में लेके और सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ में लेके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम 36 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे. सो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 = 2, 2 8 = 16, देन 2 9 = 18, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3. ओके, ये आ गया हमारे पास में 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन. इसी तरीके से अब हम निकाल देंगे यहाँ पे 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 2 की टेबल से 2 2 = 4, 2 7 = 14, देन 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो डायरेक्टली 3 3 9 = 27, 3 3 = 9 and then 3 1 = 3. So these are the prime factorization of 36 and 54. Now what we have to do? See, we will write prime factorization of 36 is equal to 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3. Similarly, we will write prime factorization of 54. So prime factorization of 54 is equal to 2 × 3 × 3 × 3. 1 time 2 and then 3 times is repeating number 3. Now we have to write common factors. अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स जो दोनों के अंदर आ रहे हैं हमारे पास में. तो कौन से आ रहे हैं कॉमन फैक्टर? आप देखिए 2 is coming in both, then 1 time 3 is coming in both, other time 3 is also coming in both. 2 बार 3 कॉमन है, 1 बार 1 कॉमन है. जो कॉमन वैल्यूज है हमें सिर्फ
वो ही यहाँ पर लिखनी है। सो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तीनों वैल्यूज़ कॉमन है। नाउ अब आप मल्टीप्लाई करिए, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, देयरफॉर HCF of 36 and 54 is equal to 18 answer. So like this you have to find out HCF of any two given numbers. Okay students, आप बस पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लीजिए, फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन में से कॉमन वैल्यूज नोट डाउन करिए और उन्हीं कॉमन वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, HCF और LCM में एक ही डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स के HCF में हम सिर्फ कॉमन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और LCM में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, आई विल बी टीचिंग यू अबाउट LCM by same prime factorization method. I hope these two questions must be clear to you. Yes, see students, now the question number 7 is find the LCM of 42, 56 using the prime factorization method. Again, we have to use the prime factorization method, but here we have to find the LCM. In previous question, we have calculated the HCF. So in LCM also, firstly using the prime factorization method, we will find the prime factors of 42 and 56. पहले हम 42 और 56 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए 42 के जब आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे, सो बाय द टेबल ऑफ 2, 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2, then 21 is divisible by 3, so 3 7 ज़ा 21 and then 7 1 ज़ा 7. So these are the prime factors of 42. प्राइम फैक्टर्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि बाहर की तरफ जो वैल्यूज आती हैं वो सब प्राइम नंबर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर खुद और एक 1. ओके, सो 42 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट कर लिया, अब हम 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करेंगे. सो बाय द टेबल ऑफ 2 ओनली बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 6, सो 2 2 ज़ा 4 and 2 8 ज़ा 16. Again by the table of 2, 2 1 are 2 and 2 4 are 8. Again by the table of 2, 2 7 are 14 and then finally by the table of 7, 7 1 are 7. Now see, now what we will do, we will write prime factorization of 42 is equal to 2 into 3 into 7. So this is the prime factorization of 42. Similarly, we will write prime factorization of 56 is equal to 2 into 2 into 2 into 7. So these are the prime factorization of both the given numbers. Now डायरेक्टली वी विल राइट LCM. अब हम LCM निकालेंगे. कैसे निकालेंगे LCM? जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि HCF के अंदर हम सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ लेते हैं. तो आप देखिए पहले इसमें कॉमन वैल्यूज़ कौन सी आ रही है, 2 इज़ कमिंग कॉमन एंड 7 इज़ कमिंग कॉमन. ये दो नंबर्स सिर्फ कॉमन आ रहे हैं. तो मैंने आपको HCF में बताया था अगर इन नंबर्स का HCF निकालना होता तो HCF 2 into 7 14 आंसर हो जाता, बट अभी हमें HCF नहीं निकालना है, हमें LCM निकालना है. तो LCM के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स के हम कॉमन और अनकॉमन दोनों वैल्यूज़ को लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं. तो कॉमन पहले तो 2 आ रहा है और 2 2 ऐसे हैं जो अनकॉमन है. ओके, तो उसको भी हम नोट डाउन कर देंगे. अनकॉमन को भी हमें लेना है. 2 के बाद में 3 भी है जो अनकॉमन आ रहा है, तो वो भी हम नोट डाउन कर देंगे. और 7 कॉमन आ रहा है. जो कॉमन आ रहा है उसको हम एक बार ही लिखेंगे. लाइक यहाँ पे 2 और 2 कॉमन आ रहा था तो उसको हमने 1 टाइम ही लिखा और बाकी के दोनों 2s को हमने नोट डाउन कर दिया. 3 कॉमन नहीं है तो हमने लिख दिया. 7 कॉमन है, 2 7 कॉमन है तो इसमें से हम 1 7 को ही नोट डाउन करेंगे. दैट मीन्स लाइक दिस. ओके, नाउ यू सिंपली मल्टीप्लाई. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 and 24 into 7 is equals to 168. So this will be your answer. I hope that this method is clear to you. Just remember the difference between LCM and HCF. LCM और LCM के बीच का डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा. LCM के अंदर हम कॉमन और अनकॉमन दोनों वैल्यूज़ को लेते हैं और HCF के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ को लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, now let us move on to question number 8. Solve the following.
इनको हमें सॉल्व करना है, एक में एडिशन है एक में सब्ट्रैक्शन है। फ्रैक्शनल सम्स हैं उसके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के फ्रैक्शन सम्स कभी भी आते हैं और बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन होता है तो डिनोमिनेटर जो होते हैं वो लाइक होने चाहिए। ओके, लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है तो पहले हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है बाय टेकिंग द एलसीएम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स को हम एलसीएम लेकर और सिमिलर करेंगे। तो आप देखिए पहले आप 5 और 7 का एलसीएम लेंगे लाइक दिस। 5 की टेबल से 5 1s are 5, देन 7 1s are 7। क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके ही इसका एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आया है 35। ओके, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप और जो 35 आया है उसको आप डिनोमिनेटर में प्लेस कर देंगे इस तरीके से। अब न्यूमरेटर में आप ड्रॉ करेंगे एक ब्रैकेट और आपको देखना है 5 की टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है। तो 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 7, देन यू विल प्लेस वन मल्टीप्लिकेशन साइन। 7 के बाद में आप एक मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब आपको देखना है 5 के ऊपर कौन सी वैल्यू है। तो 5 के ऊपर दैट मीन्स न्यूमरेटर में 2 है तो हम यहाँ पर जो भी नंबर न्यूमरेटर में होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक और ब्रैकेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में देखिए 7 की टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो पहले आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से दैट मीन्स 4 से। ओके, नाउ मल्टीप्लाइड 7 2s are 14 प्लस 5 4s is 20 अपॉन 35। अब आप ऐड करिए, सो 34 अपॉन 35, ये हो गया आपका आंसर। ओके, सिमिलरली वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लेंगे एलसीएम क्योंकि आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो एलसीएम लीजिए आप 2 की टेबल से। 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 will come as it is, then by the table of 3, 1 and 1. So multiply it 2 into 2 into 2 into 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 into 3 is equals to 24. तो यहाँ पर आ गया है हमारा LCM 24. Now see, same process we have to follow. Draw one line and place the LCM here in the denominator. एक line draw करके हॉरिजॉन्टल आप जो भी LCM आया उसको डिनोमिनेटर में प्लेस कर देंगे. नाउ यू हैव टू ड्रॉ वन ब्रैकेट. एक ब्रैकेट ओपन करिए. अब आप देखिए 8 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, तो इट कम्स 3 टाइम्स. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर, सो इट इज 7 माइनस अगेन ओपन द ब्रैकेट. 12 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, इट कम्स 2 टाइम्स. सो राइट डाउन 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर 5. नेक्स्ट स्टेप, डू द मल्टीप्लीकेशन. 3 7s is 21 minus 2 5s is 10 upon 24. अब सिंपली 21 में से 10 को आप माइनस करिए, सो यू विल कम अप विद द आंसर 11 upon 24. So this is the answer of part B. Okay students, now I hope question number 7 and question number 8 is also clear to you. Yes, see students, the last question which I have given you in your revision test 3 was 3 square tiles of sides 15 cm are placed side by side. 3 square tiles थी और उनका जो साइड था वो 15 सेंटीमीटर था. तो आप देखिए पहले यहाँ पे मैं 3 स्क्वायर टाइल बना रही हूँ. 1 2 3, ये 3 स्क्वायर टाइल्स थी और इनकी साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर. आपको पता है अगर स्क्वायर के अंदर एक साइड 15 होती है तो उसकी चारों साइड 15 होती है. तो यहाँ भी 15 आ जाएगा, यहाँ भी 15 आ जाएगा, यहाँ भी 15 आ जाएगा, सब जगह 15 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है. ओके, अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इट इज़ प्लेस्ड साइड बाय साइड, दैट मीन्स इनको ज्वाइन करके रख दिया गया है. तो देखिए अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, सो ये हमारी फर्स्ट टाइल थी, ठीक है. इसको अटैच करके हमने जो दूसरी टाइल थी उसको भी रख दिया और फिर इसके साथ में अटैच करके हमने तीसरी जो टाइल थी उसको भी प्लेस कर दिया. ओके, प्लेस करने के बाद में क्या हुआ, ये 15 की थी, ये भी 15 की थी और ये भी 15 की थी. तो ये जो इसकी लेंथ थी वो इंक्रीज़ हो गई है.
ओके जो ब्रेथ है वो तो सेम ही रही है, जो रेक्टेंगल बना है जब हमने स्क्वायर्स को ज्वाइन कर दिया, साइड बाय साइड प्लेस कर दिया, तो इससे हमें एक रेक्टेंगल मिल गया, जो कि क्वेश्चन में लिखा है साइड बाय साइड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो जब इसको साइड बाय साइड रखा तो एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बनने से क्या हुआ स्टूडेंट्स की इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, लेकिन इसकी जो ब्रेथ है वो ही की वही है जो कि स्क्वायर में थी, मतलब उतना ही इसका मेजरमेंट है जितना कि पहले था। दैट मीन्स ये ब्रेथ तो 15 ही रहेगी बट लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनली आपको इस तरीके का एक रेक्टेंगल मिल जाएगा जब इन स्क्वायर बॉक्सेस को आप साथ में प्लेस करोगे। ओके तो लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, और लेंथ इंक्रीज होने के बाद में आप देख सकते हो जब लेंथ इंक्रीज होगी तो आपको 45 मिल जाएगा, क्योंकि 15 15 15 को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 15 15 15 आ जाएगा हमारे पास में 45 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो 15 सेंटीमीटर ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड। जो रेक्टेंगल हमको मिल गया है स्क्वायर बॉक्सेस को साइड बाय साइड प्लेस करके, उसका पेरीमीटर हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड। जो रेक्टेंगल हमें मिला था उसकी लेंथ कितनी निकल गई थी हमारे पास में, तो जैसा मैंने आपको लास्ट फिगर में बताया है 15 15 और 15 को जब हमने प्लस किया तो हमें लेंथ मिल गई 45 सेंटीमीटर। ओके इसी तरीके से हम निकालेंगे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड, और जो ब्रेथ थी जो कि मैंने आपको बताया ब्रेथ जो है वो सेम रहेगी, उसमें स्टूडेंट्स कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो वो रहेगी 15 सेंटीमीटर। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर अब प्लेस कर देंगे, एंड वी नो दैट इट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, सो it will be 2 and the length was 45 and the breadth is 15 centimeter. So आप इसको ऐड करेंगे 2 into 45 plus 15 will give you 60 centimeter, and when you will multiply it you will get the answer as 120 centimeter answer. Okay students, so like this you have to solve your question number 9. Here I have given you the explanation of all the questions which were there in your revision test 3. I hope all these questions are clear, and if anywhere you have done mistake in any question, then please go through it and try to understand that particular question and do practice of that question, so that during exam you will not find any question difficult. Okay students, so that's all for today. Now I will meet you back in the next lecture where I will give you the answers of explanation of your revision test 4. Okay, so till then you students please take good care of yourself and do study well for your half yearly examination. Thank you so much.